I discussed last time what is an ADO.NET. It is DLL. It's not a language, it is a DLL. It is providing an MS space and carrying several classes to communicate the front end with the back end. Fine. Back end I can have SQL Server, I can have Oracle, I can have MS Access, I can have any back end, doesn't matter. But there is a compatibility, there is a user-friendly atmosphere. We use SQL Server. Doesn't mean we can't go for Oracle. We can also go for Oracle. But we have to go Oracle client in MS space. You want to go MS Access, you go with the full बात करना पड़ेगा। मैं हम लोग बाहर वेट करता रहता हूँ यार 8:30 में क्यों आते हो यार? अब 8:32 हो रहे हैं। देखो मेरी अंकल कहाँ बैठे हैं? क्या है वाला कार सिस्टम? चलो आ जाओ। चलिए जल्दी आओ। So we have respective database and we have corresponding namespace for that. Respective means I have Oracle. I can go with the Oracle client namespace. I got MS Access. I can go with the ODB namespace. I got SQL Server. I can go with the SQL client namespace. So system, then data, then you can have a path to go SQL client, or you can go to Oracle client, or you can go to what? OLEDB. Next I have said, forget this time OLEDB or Oracle client. If you know one namespace, or you can connect easily with other database with a different namespace. So keep your pointer fixed and concentrating on the single call SQL client. SQL client namespace comes under data and data comes under system. Or you can speak from top to bottom, a system to data to SQL client. In SQL client namespace, we have several classes. The SQL connection class, SQL command class, SQL data reader class, SQL parameter class and parameters class, SQL data adapter class, SQL command builder class. You try to take a 5 or 6 class name once you go for interview. And every class obviously plays a major role to communicate with the backend. One class cannot do all the activities, obviously. We need to have a collection of classes to perform the operations. It's not a joke for making a program like Fibonacci and Factorial. We can make a single class and single function. Because you are connecting with a database. It's really a matter, it's not a joke. So there is an effort of several classes behind the scheme. SQL connection class really plays a major role for have a physical connection with the database because it demands the parameterized constructor for passing a provider. We pass a provider by SQL connection in double quotes. And we can have two types of provider, when the local provider or other database on other system provider. So I use for local integrated security is equal to yes or true, doesn't matter. You can write both, either yes or true. SQL command class, you have to do practice more. Because the man knows database better. He is a good in database. And database can be good if you do practice as a translation. When I was doing MCA, I was not feeling good with the database concepts because just memorize the syntax and you can go forward. So I had a problem with the giving interview with the database concepts because touchwood I was good in logically concepts. I love to play in C and data structure and the reasoning questions I love to solve. But if you get a query, you have to remember the queries. So database you have to do practice more. Oops is a logical concepts. You have to listen me.
It's my effort for last several years in this. But database I feel uncomfortable because if a faculty takes a class of database, I don't think so you can learn something else, because if you do practice with the queries, what is queries? As a translation, has, had, been, gone. If you do practice with the database, take any book or any PDF or go to Microsoft site and open the analyzer, right, having group by, where clause, order by, select within select. It's only matter of practice. I had given in my life, when I was your age, 8 hours practice, 10 hours practice in a day or a couple of days. I don't think so after that I had a problem. So it demands time. And OOPS time, OOPS demands the duration. OOPS never be complete within a couple of days or couple of months. It comes naturally and gradually once you grow by your brain. So I say polymorphism. I have experience to explain polymorphism because I relate with the real worlds, with the father, with the mother, with the surrounding and all that. So example can comes by the practice or by the experience. But SQL query cannot comes by the experience. It comes by the what? Practice. So I don't think so. Attending my database class, you can have any benefits. You can have a benefit of interview rounds. What is function? What is procedure? What is trigger? I can go for that. But practice, you have to do. So if it's a starting time with you guys, is better couple of days, within a 7 days, we try to build a new database concepts better. And do more practicing of SQL queries, you can have better. So the man who knows, why I'm telling like this, because the man who knows better database concepts, he can use SQL command class. He's a weak and sick in database. You don't want to go for practicing of AD.NET because you don't know more and more queries. The man knows better grammar. He want to go for learning the vocabularies, but he doesn't know grammar. Why are you going for learning the vocabularies? So go for group by, go for where clause, go for order by, go for self join, and do practice by SQL command. It's very proportional ratio when you go for practicing of database and implement by the what? SQL command. The SQL command class is primarily made for, it's mainly made for writing a different types of queries. Writing a different type of queries. To be very frank, man can go for learning AD.NET who has done practicing of several years or several hours for database concepts. He doesn't know database concepts. I don't think so. He can learn more and more about AD.NET. So be careful. Every day you do practice of 2 hours for database, and I hope 2 hours into 7 days is enough. It's enough. So SQL command class is primarily made for writing SQL queries or different type of queries. Obviously, after writing a query, we can have output. Obviously, after writing query, I can expect any output is called response. So I can hold that response into SQL data reader class. The SQL data class is made for retrieving the data and holding the data into buffer. Now a data reader. You connect to shop, ask for item, and come back to house. Where is the item? In your house. It's called SQL data reader. So what is data reader? Now a data reader. How you can get the data? How you can get the data? Once you go for doing queries. You do query, you can get data. Where you can get data? In SQL data reader. As a Newton third law of motion, you act, you can have a response. It's called react. So for act, you have to have a very good of SQL queries, and you can go for practicing by SQL command class. So I don't think so. AD.NET के द्वारा you can learn something good in database. Learn database, implement by AD.NET to work with fetching a data. True. But if तुमको डेटा लेने की टेंडेंसी हो, डेटा रिट्रीव करने की टेंडेंसी हो, then you go for SQL data reader class. But you wanna go for insert, you wanna go for SQL update, you wanna go for deletion of data. It's called TSQL, called Transact SQL. उसके लिए we don't require SQL data reader class because where is my direction? From I am giving to you, so I have to go for function called execute non-query. What? So execute non-query is a member function of SQL command class. SQL command class is a function called execute non-query. When someone asks you go for insert, go for update, go for delete, it means you don't want to go for reading the data. You are giving a new data to what? Means if you are taking the data from database to front end, database to, then you go SQL data reader. But you want to go for penetrating the data
or giving the data from front end to back end. When your direction is front end to back end. When your direction is front end to back end. I am giving to you. I can give you three ways. Delete my record, update my existing records, or add new records. Look at my direction. Front end to back end. Doing imagination, no? पता मैं क्या बोल रहा हूँ? You make just one imagine. Front end to back end. Front end is giving to back end. No, I don't want to go for SQL data reader. When you want to go for data reader, when back end to what? Front end. बहुत 100 रुपये ले लो, चावल दे दो, 100 रुपये ले लो. Where is my intention? Front end to back end. दे दो, data reader. So when you want to go for insertion of data, updation of data, and deletion of data, you go with the three classes. So you go with the two classes: SQL connection, conjunction with SQL command. तो माइंड को जब समझो, सुनो, माइंड को पहले स्थिर करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ऐसा सुनो कि लाइफ टाइम दिमाग से ना निकले. अगर ये नहीं है तो आप मेडिटेशन करो. फिर पहले माइंड को कूल करो. हमारा ही टंकल. अगर आपको मेरी बात सुन रहे हो और कहीं आपका मन और कहीं और माइंड चला गया, या कहीं आप और खो गए, फिर आप क्लास की तौहीन कर रहे हो. इसलिए कहते हैं आने से पहले तो 10 मिनट पहले वॉक करो. अच्छा, अब मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ. You concentrate your mind and go for listening, and after that, whatever you want to do, you go and do. You go for with the fun, you go with the watching a movie, you go with the playing the Ludo, you go with the playing with anyone. But within a class, you have to be logically stand. It is a place, it can give you something for the whole life. So you might be lose tomorrow something in your life, and obviously man is made for losing something tomorrow. But I have seen, I am gaining one thing always called knowledge. 10 years back, I am with the other persons. Every year, I am losing something. But every year, I am preserving my knowledge. So, I have learned the psychology with a mother. What is life? She is very good lady. She knows better psychology. Fine. So I have learned the activities, the plan, the management. Only by my mother. She is very educated lady, and by all the behavior, my knowledge, my mother only. Because she says, if you do one thing at one time, so otherwise it will not with you for a whole life. अभी मैं देखता हूँ क्लासरूम में मैंने पूरी वीक बैच सस्पेंड रखी. बच्चे आते हैं क्लास में और नेक्स्ट डे उनसे वो चीज़ पूछो तो बोल नहीं पाते. वो बच्चे लाइफ को धोखा दे रहे हैं. ये उनकी टेंडेंसी बन गई है कि जो पढ़ रहे थे वो सब क्लास में वो नहीं. मुझे गुस्सा इस बात का नहीं है कि उससे प्रोग्राम नहीं बना. मुझे गुस्सा इस बात का है उनकी माइंड कहाँ थी. It means he has got a tendency sitting somewhere and thinking something else, and it become perception, it become habit, it will be continue. वो कुछ भी कर लेगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो ये सब चीज आदमी अपने संस्कार से लेकर आता है और घर से लेकर आता है और बाहर से नहीं मिलता. फाइन. सो फाइनली इफ यू वांट टू गो फॉर having a tendency to front end with the back end, front end to back end, you go with the SQL connection plus SQL command. तो एक होता है पढ़ाई जो मास्टर लगा दी स्लाइड या को बना दी हाइलाइट्स नोट्स, उसको देख के पढ़ाता है. तो मैं ये सोचता हूँ पढ़ाई की तो उसके पास अपना कुछ सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं. कोई भी आप कहीं भी जाओ, अगर किसी बंदे ने ये एजेंडा है हम ये पढ़ाएंगे
उसने स्लाइड खोल दी और उसको एक्सप्लेन कर रहा है. इट्स नॉट एजुकेशन. एजुकेशन मीन्स a man is having experience to spell the words, or he can memorize, or he can try to speak, so that you can also learn the idea how you can go for. So I said you want to go for front end to back end, you go with the SQL connection with the SQL command. But you want to go with the retrieval of data. Retrieval means any retrieval. You want to go search, you want to go for join, means I can get some output by any ways, by where clause, by where group by, or joining of two tables, or by single table, whatever. You get the data by any hook and crook methods. By any ways, I have to go with a third class called SQL data reader. So for retrieval of data, I required three classes: SQL connection, plus SQL command, plus SQL data reader. समझ गए? तो that's why I used last class. I want to go for fetching a data. I have gone with SQL data reader. But जहाँ बोला insert करो, I don't want SQL data reader. Insert means मैं आपको दे रहा हूँ. Update means आपके existing record को update कर रहा हूँ. Delete मैं request कर रहा हूँ उस record को delete कर दो. तो मेरे pointer कहाँ है? तुम्हारी तरफ. तो मैं retrieve नहीं कर रहा हूँ, तुम उससे retrieve कर लो. अगर मैं retrieve करूँगा, then I require SQL data reader. Did you get a point, you guys? Sure. So now finally we have a front end, we have a back end. Okay? There is a window application you can have a web applications, you can have a console application. आपका माइंड कहीं जाता है ना बाहर, आपका क्लास से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं. Again you come back. But sit in a class, you sit anywhere with a brain. आपको मैंने अचानक कुछ आ गया, अब उसको एक मिनट के लिए रुको. You have to have a conscious mind. What? Conscious mind and proper concentration. This is called intelligent student. सुनते उस लड़के ने IIT निकाला. पता है वो चीज़ क्या है? Conscious mind and proper concentration. कोई बच्चा अपनी माँ की कोख से तेज जन्म नहीं लेता है, कमजोर जन्म नहीं लेता है. From the first day, he is getting a proper concentration or not. That makes him indifferent from anyone. समझ गए? आप कहीं भी रहें, आप मुझसे पढ़ें, आप 10 साल के बाद भी किसी से और से पढ़ें, तो आप प्लीज मेडिटेशन जरूर करें. मेडिटेशन which will give you a higher concentration for listening. और आपको पता है इतना बना देगा इंटेलिजेंट, अब कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी आप चुटकी में सॉल्व कर दो, बिकॉज यू हैव गॉट अ कंसंट्रेशन. So I have made console application. I have made what? Window application. I have made what? Web application. Hardly matter. Or you can also go with the next one called web service, or you can go with the WCF. So I can use the ADO.NET by different ways. But now remove this time WCF and web service. Only concentrate on console, Windows and web, and we have a backend called database, and this is the one table. This is student table suppose. In this table I have suppose a 3 columns. The roll number, the student name, and the student course name. And do inquiry with it. Do inquiry. Do query. Do inquiry. Do counseling. Talk with the database. As English translation. The man never does in a live translation. I don't think so. He can speak better English. I have said to Asutosh Srivastava, he is a ABS student.
टीचिंग टू माई किड्स, छोटा बच्चा है, इसको आप कुछ मत कराओ, यू ओनली गिव ट्रांसलेशन. डोंट ट्राई टू टीच हिम मैथ. फॉर मैथ संदीप करण इज मैथ. You teach every day 1 hour translation. And fortunately, one girl was in my center. Her father has got a very good showroom for the books and all there. तो मैं उसके पापा से बोलकर 15-20 बुक्स मंगाई थी ट्रांसलेशन की. हिंदी में अनुवाद करो, इंग्लिश में अनुवाद करो. आदमी का फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसकी लैंग्वेज, और जितना रिमेनिंग चीज़ है ना वो एक लॉजिकल नहीं, ऐसा नहीं है. नॉलेज ऑफ जावा, नॉलेज ऑफ डॉटनेट इज डिफरेंट है. आपकी हिंदी और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वो उसको सिखाता है ट्रांसलेशन. तो अब ट्रांसलेट करेंगे ना, अब मैं डेटाबेस को देखकर बात करूँ. मुझे रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, मुझे रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है, मुझे वो रिकॉर्ड सर्च करना है जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर एल से स्टार्ट होता है, कोई के से स्टार्ट होता है, इसका एंड एस से होता है, समथिंग लाइक. हमें बातें करो, ट्रांसलेट करो. बट ये क्वेरी जो भेजूंगा किस माध्यम से? एसक्यूएल कमांड से भेजूंगा. अगर लेना होगा एसक्यूएल डेटा डिटेल्स, या उसको देना होगा तो एसक्यूएल कमांड से. ठीक है अंकल? अब तुम बातें नहीं करोगे तो इंटरव्यू, अब इंटरव्यू में क्या होता है, अंदर 3-4 कॉलम बना देते हैं. और मेरा बच्चा कैसा है भाई? हैप्पी? तो चेहरा ही बदल गया इसका, चेहरे में खुशी आ गई. अंकल को प्रणाम करो, शर्म नहीं आती करे. हो गया मनीष? चल रहा है ठीक ना? खुश है ना? तो आप ऐसा ही टेबल को 5-6 कॉलम बना लो और उसे 15-20 रिकॉर्ड डाल दो और उसको देखिए क्वेरी करो. मुझे सेकंड रिकॉर्ड चाहिए, मुझे सेकंड रिकॉर्ड का वो कॉलम चाहिए जिसका फर्स्ट नेम एस से स्टार्ट होता है. डू क्वेरी. इसको ट्रांसलेशन, इसको राम जाने को है, राम चला गया, राम जाता है. और उसका नाना भी उसको ट्रांसलेशन ही कराता है. एक अच्छा बोलने वाला इंग्लिश बिना ट्रांसलेशन का अच्छा इंग्लिश नहीं बोल सकता. तो अभी उसकी एज है व्याकरण सीखने की और हमारी एज है डेटाबेस सीखने की. यू डोंट डू ट्रांसलेशन विद द डेटाबेस और यू कैन लर्न क्वेरीज. You are searching a book for database. No, baby. You make a table, make a columns, and have some records. Now do questioning. And if you don't do questioning, if you do questioning, नहीं कर पाते हो, उसको टाइप कर दो गूगल के अंदर, आपको आंसर मिल जाए. ये यू कनेक्ट टू एनी फैकल्टी. तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम डाल दी. चलो क्वेश्चनिंग करते हैं. हम चाहते हैं यहाँ एक नई रिकॉर्ड सेव हो जाए. जो हमने रिकॉर्ड आज सेव करा था वो रिकॉर्ड क्या हो जाए? बोलो कल अपडेट हो जाए. वही रिकॉर्ड बोलो क्या हो जाए? डिलीट हो जाए. बहुत इजी हमें लगा डेटाबेस को सीखना, बिकॉज इज अ वर्ड कॉल्ड ट्रांसलेशन. ये एसक्यूएल के अनुवाद है, हिंदी का अनुवाद है. तो डोंट ट्राई टू मेक अ टेंडेंसी एवरी टाइम बाय लर्निंग समवन. अदरवाइज यू आर स्टॉपिंग योर ब्रेन टू ग्रो. Make a mind problem solving, not make a mind for getting a solution. ठीक है? So now keep stream right SQL. लिखती को लिखते ही देखो, लिखते ही क्या लिखते ही SQL connection. Keep one more class here, SQL word. Keep one class SQL data.
It's a one-time achievement. It's not a one-time achievement. It's a variant because you can change your query. It is dynamic by nature. भले पानी मांग आप चाहे मांग रहा हूँ. I change my query, and the moment I do query, I get some response. I can hold into what? Data reader. It means again you go see data structure. तुम किसी चीज को किस तरीके से सोचते हो यार, that's most important. देखो, अगर मेरी कर्सर और इसको जोड़ दो, ये सिंगल लिंक लिस्ट हो गया और इसको जोड़ दो, तुम अपनी लैंग्वेज से पढ़ो, तो कैसे भी पढ़ो, पर थोड़ा फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए. जनकार का सिलेक्शन हो गया, महीने का 2 लाख पैकेज वहां भी हो गया और दीपक झा वाले कंपनी में हो गया. नहीं, वो तो वहां गया मॉरिशस, मलेशिया गया, मलेशिया ऐसे बहुत ज्यादा बन के दीपक झा. कहता है सर मेरे को गेट उस दिन बोला 5 साल लग गए सर मेरे को यहाँ पहुँचने, और सर मैं 5 साल में सारे गलत काम सीख लिया. मुझे उसके गेट पे बोला परसों रात, जिस दिन पार्टी भी थी. मैंने उसमें क्या गलत काम सीख लिया सर, मैं एक बहुत बड़ा ड्रिंकर बन चुका हूँ, आपको नहीं पता. वो लड़का नीचे आता है ना अंकल, ड्रिंक करके बैठता है गाड़ी में, और उसकी हर वक्त सिगरेट जलती रहती है. एक सिगरेट खत्म, सिगरेट शुरू. सर क्या करूं, लाइफ में कुछ मिल ही नहीं रहा था. जॉब अच्छी थी बट जो मेरे को पढ़ने की चाहत थी वो ब्लॉक हो गई. लाइफ रुक सी गई थी. गेट पे बोल रहा है मेरे को, एक कंपनी में इंक्रीमेंट नहीं हो रही थी और अच्छे काम करते थे, एप्रिसिएशन नहीं मिलता था. मैं उसके फ्रस्ट्रेशन को सुन रहा था और यही सीखा कि इस तरह के बच्चों को गार्जियन का वो प्यार नहीं मिला है. बेटा पेशेंस रखो, सब मिलेगा. इतनी जल्दीबाजी क्यों, हमें समझ में नहीं आता. लेकिन तो लाइफ 30 में जाएगी, 40s में जाएगी, 50s में जाएगी, 60s में जाएगी, 70s में जाएगी. दिस इज लाइफ साइकिल. पाने की चाहत में लोग पागल हो चुके हैं लिटरली. लाइफ को मल्टीप्लाई नहीं करते अगले 20 साल के लिए. साल अभी कल के लिए अप्लाई करती, कल ही मुझे सब कुछ मिल जाए. मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग 22 साल की एज में पढ़ता था, 25 साल की एज में पढ़ा, 30 में भी पढ़ा, अभी भी पढ़ रहा हूं. बट ये नहीं कहो कि एक ही बार से कुछ खत्म हो गया. इट टेक्स टाइम. चीज आपको धीरे आएगा. डेटा रीडर, अब देखो कर्सर को इधर रख दिया, मतलब मैं ऐसी क्वेरी कर रहा हूं जिसका मुझे आउटपुट मिल रहा है. अगर मेरी क्वेरी का आउटपुट ऐसा है तो उसका क्वेरी, अगर मेरी टेंडेंसी ये वाली है तो मेरी क्वेरी कैसी होगी, मेरी क्वेरी कैसी होगी, सेलेक्ट होगी. दिमाग लगाओ, अरे बोलो यार. वेयर होगा, ग्रुप बाई होगा, सब आपको देने वाले बंदे हैं. सब ये सब कमांड कीवर्ड है. ज्वाइनिंग होगी, ठीक है. कितना लिखूं मैं, अगर आपका टेंडेंसी इधर है, इसको मत छेड़ो, इसको रहने दो. कंट्रोल सी एंड वर्ड, कंट्रोल. अब इसको निकाल दिया और यहां रखो. आई एम गिविंग टू डेटाबेस.
by SQL command. Rather than I am not getting from SQL command. Rather I am giving to SQL command. Why? पता है क्यों? अपडेशन, डिलीशन और इंसर्शन. तो मेरी क्वेरी कैसे हो सकती है? इसके नीचे ये एरो बना दिया. चलो यार, आज सारी क्वेरी पढ़ते हैं जो डेटाबेस से लेते हैं एंड डू प्रैक्टिस बाय .NET. उसके पास पर्पस नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ता है यार. He is a man without purpose. I don't know what is going. अब SQL कमांड में आप क्या लिखोगे? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और चौथा कुछ हो ही नहीं सकता. इसको ट्रांजैक्शन को लिखती है SQL. और यहाँ पे AP का इक्वेशन है 1 + 2 + 3 +++. आपको हजारों कीवर्ड मिल जाएंगे, हजारों तो नहीं, आपको 100 कीवर्ड जरूर मिल जाएंगे जो आपको देखेंगे. अरे बोलो यार. पर आप किसी को 3 चीज से दे रहे हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. तो आप अगर डेटाबेस से ले रहे हो तो उसको शो तो कराओगे ना फ्रॉम डेटा रीडर. या बोलो कौन सा फंक्शन होगा? लिखने लगे तो पढ़ने का तरीका ही नहीं पता. चेक करिएगा ना, पढ़ोगे क्या? हाँ, अब बाद में लिखेंगे. अच्छा, हाँ. रीड इज ए फंक्शन ऑफ SQL डेटा रीडर. रीड के द्वारा हम लेंगे और रीड के द्वारा लेंगे. और रीड से पहले किसके पास था? डेटा रीडर के पास. रीड से मुझे आउटपुट मिलना शुरू हो गया. रीड इज सिमिलर टू सी आउट, प्रिंटर. समझ गया? ये मुझे आउटपुट दे. समझ गया? और रीड से क्या होगा? एज ए पॉइंटर काम करेगा. कि रीड का मतलब पॉइंटर, स्टार्ट PTR C, स्टार्ट PTR +1 D +1 A सीडैक. तो आपको नेक्स्ट कैरेक्टर मिलेगा. तो रीड आपका मतलब बैकग्राउंड में क्या चला रहा है? वो पॉइंटर यूज करता है जो आपके टेबल के रिकॉर्ड को आगे बढ़ाता है. एज ए माउस पॉइंटर यू कैन से फर्स्ट रिकॉर्ड, देन सेकेंड रिकॉर्ड, देन थर्ड रिकॉर्ड. तो बाय रीड you can move one direction and you can go to next cursor. हो गया? और इस तरह की क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, अब तुम्हारे पास क्वेरी देख लो कैसा है जो तुमको दे सकता. इस क्लास का हमने फंक्शन अप्लाई किया, बोलो कौन? एग्जीक्यूट क्वेरी ना लाए. देख रहे हो पढ़ाई. इसकी बहन बैठती थी यहाँ पे 3 साल पहले. सर में लाइफ सोती रहती थी. हो गया? और इस तरह की क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ अप्लाई करेंगे एग्जीक्यूट नॉन पहले केस में भी SQL कमांड तो SQL को देते ही. वो तो क्वेरी देता है ना. और क्वेरी का आपको आउटपुट मिलेगा, किसको देगा? आपने क्वेरी करी, क्वेरी कनेक्शन के पास गया. यहां भी क्वेरी कनेक्शन के पास गया, बट क्वेरी का आउटपुट किधर है? भाई से 100 रुपया ले लो. क्वेरी का आउटपुट किधर है? तुम्हारी तरफ है. बट क्वेरी का आउटपुट क्या? बोलो मेरी तरफ है. तो पेन दे दो मेरे को. नहीं ऐसा. दोनों केस में क्वेरी कहां जाएगी? बोलो कनेक्शन के पास जाएगी. बट क्वेरी का टेंडेंसी क्या है? क्वेरी का आउटपुट क्या है? क्वेरी का नेचर क्या है? You wanna go for getting a data or you wanna go for taking a data from you. अब इसका फ्रंट एंड कैसा बनेगा? सोचो. सेव. इतना इजी है जॉब लेना यार. अपडेट और डिलीट. ये 3 आपके हो गए. 3
ऐसा 3 बटन हो गए आपके। इसके क्लिक पे वो कौन सा फंक्शन होगा? एग्जीक्यूट नॉन नहीं है सर। और कितने क्लासेस यूज होंगे बोलो? अब उसके बाद मान लो बटन हो गया, सर्च कर, रिपोर्ट कर, जनरेट रिपोर्ट, शो डेटा, कुछ भी दे दो नाम और पॉपुलेट डेटा, कुछ भी दे दो। आपकी क्वेरी बोलो कौन है, आपकी क्वेरी ऐसी हो, ऐसा कुछ हो। उसके लिए कौन सा फंक्शन? इसके क्लिक पे क्या लिखोगे? ये बटन है, ये भी बटन है, ये भी बटन है, और में उसके क्लिक पे क्या लिखोगे? और कितने क्लासेस यूज होंगे? कलेक्शन प्लस कमांड प्लस डेटा। ठीक है, चलो ये 2 केस हो गए। थर्ड केस में या कुछ रिकॉर्ड रख लो, रिकॉर्ड 1 थर्ड केस में हो, ये केस 1 हो गया। पर आप भी फिगर देख रहे हो ना, आप भी अपने आप को समझाने के लिए कोई फिगर बनाओ। हर आदमी को मास्टर बनना पड़ेगा उस मंजिल पे जाने के लिए। हमने अंकल एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं सेंटर में, जिसको हमने क्लास दी बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। पंकज सर शाम में आते थे, मतलब उस सेंटर में अब तक पंकज और मनोज की टक्कर में कोई नहीं आया। दोनों के पास एक्सपीरियंस था 17 ईयर्स का, और जितने झंकार वगैरह ये सब 12-14 के बीच के। 17 ईयर्स में पंकज द्विवेदी, उनको मैं सर बोलता था, मुझसे काफी सीनियर थे। बंदा मेरे को बोलता है कोर्स के 3 महीने के बाद संदीप मेरे को बैच दे पढ़ाने के लिए, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, वो सब ठीक हो जाएगा, सारे बिगाड़ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? यार डेवलपर हूं ना, काम करवाता हूं। लिसन मैन जो क्वेश्चन करता है ना तो इरिटेट हो जाता हूं। लिसन मैन बैठने की हैबिट से हो गई या काम करने की हैबिट कम हो गई। बस जुगाड़ खोलता हूं, आपको काम दे दे, काम किसी करवा लो, थोड़ा शाम की बैच दे दो। बंदा आज बैठा है 1.2 करोड़ के सैलरी पे यूएसए में, फेसबुक या पंकज देवे सर पैसा नहीं, आप ही के बैच को पढ़ाओ, कोई नया बैच मत देना। जो आप बैच लेते हो 6 to 7, बस मेरे को 15 मिनट दे देना पढ़ाने के। और वही पढ़ाता था अंकल जो हमें, मतलब हमने जो पढ़ाया ना 45 मिनट में, उसी को समराइज किया मतलब किसमें 15 मिनट। ये काम वो 3-4 महीना करा, अंदर कहाँ से कहाँ निकले। तो एक होता है लर्निंग, एक होता है लर्निंग के बाद उसको बोलना कैसे, दोनों सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। आपको हर तरीके से तैयारी करना है, सारे तरीके। केस 3 में एक बटन ले लो, यहां पे तिफन, काउंट रिकॉर्ड, काउंट कितने आइटम, कितनी एंट्री हो गई आज कितने इंक्वायरी आई। टोटल इंक्वायरी बतलाओ और कितना एडमिशन। सब 5 आई थी, 3 हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ? तो अगले महीने आएगा।
टोटल फीस कितनी आई? सम। जहां तुम क्वेरी करो और एक ही आउटपुट मिले, जहां तुम क्वेरी करो और एक ही आउटपुट मिले, किस बैच के हो बालक? टाइम देखो यार, आ जाओ। तो जहां क्वेरी करो और आपको उस क्वेरी का एक ही आउटपुट मिले, वो भी कैसा? ये मत करो क्वेरी करो एक ही आउटपुट मिले, जैसा फंस जाओगे। जैसे मैं रोल नंबर की क्वेरी करी तो एक ही आउटपुट मिलेगा ना जी, रोल नंबर क्या प्राइमरी की है, फंस जाओगे। जहां एक क्वेरी करो और उसका जो आउटपुट हो सम के लेवल पे हो, जाओ उस रूम में काउंट करो कितने चेयर है, जब काउंट करो कितने गेस्ट बैठे हैं बाहर। जहां तुम्हारी क्वेरी का एक आउटपुट ना हो, तुम्हारे क्वेरी का एग्रीगेशन हो, क्या हो? कंप्यूट हो, सम हो, मैक्स हो, मीन हो। जब उस रूम में देख के आओ अंकल बैठे हैं कि नहीं, ये सर्च हो गया। जब उस रूम में जाओ देखो कितने अंकल बैठे हुए हैं, ये क्या होगा? बोलो काउंट। काउंट। जब तुम्हारे क्वेरी से एग्रीगेशन निकले, क्या निकले बोलो? काउंट निकले, सम निकले, मैक्स निकले, मीन निकले, वहां यूज करो एग्जीक्यूट स्केलर। एग्जीक्यूट स्केलर। When I do the query and we get the output as a max, output as a mean, output as a average, is called what? इस केस में अब काउंट हो, सम हो, क्या क्या लिखूं मैं? मैक्स हो, मीन हो, एवरेज हो। तेरे क्वेश्चन छूटेगा इंटरव्यू में। और जाना इंटरव्यू के लिए तो बैठा हुआ है एससीएल जाएगा क्यों? तो अभी बोल रहे याद ही ना मेरे को, तेरे बारे में याद ही नहीं आया। कल फोन क्यों नहीं करता? कभी झंडा ले रहा है यार, कुछ नहीं है। जाले के याद है ऑफर लेटर क्या माने लेके? अच्छा चला को लेके चला जाओ। अरे ऐसा ही प्रकाश पॉल छत पे आया मेरे, अब पुनित खुल्लर, और मुझसे पता नहीं पंजाबी में क्यों बात करे, फूटा फूटा मैं बोल दूँ। तो सर मन नहीं कर रहा जाने का। फरवरी का महीना था, ठंड लग रही थी, चले गए छत पे खाना खाने, धूप लग रही थी वहाँ। तो कैसा बिल्कुल नहीं जाओ। मैंने चल रोटी खाए इसमें से, कैसा घर का खाना है, मेरा ट्रीट ले लिया मेरे से, कैसा आप मंगा लो मुझे खाने लो। मैंने खा लिया ना, अब चला जा। नहीं मान रहा था, मुझे गुस्सा आ गया, थप्पड़ मार दिया, मैं चला जाओ। आ गया शाम में ऑफर लेटर लेके 13.5 लाख रुपये, 13.5 लाख ऑफर लेटर जाके दे रहे। यू कैन गेट अ क्वेश्चन यार, बोल जाता ऐश हो जाएगी तेरी। मनीष शर्मा बैठेगा फर्स्ट राउंड में, झंडार बैठेगा सेकंड राउंड में, और कोई भी बैठे कोई दिक्कत में तो फोन कर दिया मोबाइल। सबका गुरु एक बंदा है मनोज कक्कर, तो ऐसे तो छोड़ दिया, सब उसके अंडर में थे। बस तू वहां से मेरे को बोल दिया, मैं मनोज को फोन लगा दूंगा, कोई भी हो। तो केस 3 में अनुराग सिंह का नंबर है, अनुराग सिंह का नंबर है, इधर किसी का नंबर है, अनुराग सिंह का वो भी जा रहा है। उस ग्रुप में किसी का नंबर है तेरे पास? किसी का? उस ग्रुप में किसी का नंबर है तुम्हारे पास? जंगार को फोन कर दो, डायरेक्ट बात कर लेगा, फोन से बात कर लेगा। अनुराग सिंह का नंबर है? ठीक है अंकल, तो ये एसक्यूएल कमांड हो गया और एसक्यूएल कनेक्शन हो गया। अब तुम क्वेरी करो, ये डायरेक्शन याद रखना बालक, ये डायरेक्शन ऑलवेज किधर होगा बोलो, ध्यान रखिए, ये ऑलवेज किधर होगा बोलो, नया शब्द। अरे बोलो, और इधर के बाद कोई एरो नहीं मिली तो बोलो क्या करें, इंसर्ट अपडेट और डिलीट कर रहे हैं।
इधर के बाद एरो मिली तो क्या करना है बोलो, रिट्रीवल करना है। तो एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कनेक्शन। यहां से क्वेरी करी, अब कौन सी क्वेरी मिली, कौन सी क्वेरी करी, कौन सी, मैक्स वाली, बोलो कौन, सम वाली, एवरेज वाली, काउंट वाली, सॉरी काउंट स्टार होता। तो एसक्यूएल क्वेरी पढ़ो डेली, डेली आप 4-5 एसक्यूएल क्वेरी पढ़ो, 4-5 क्वेरी इंटू 30, 150 क्वेरी आ गई यार, 150 कमांड आ गई, क्वेरी नहीं, एसक्यूएल कीवर्ड, एसक्यूएल कीवर्ड। ये क्वेरी अब कहां से करोगे, किस फंक्शन से, एग्जीक्यूट वन, नहीं समझ में आएगा वाला का मेरी क्लास नहीं आएगा, अपने वजह से सिखाया सकता है, मजा आ गया, आई वेरी हैप्पी। मैं भाई को रास्ता आपकी बिल्कुल बात कहूँ, जिसको जो करना है करो, हमें मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों खराब है, सही। ये अब ये वाला फंक्शन अब हम कब यूज करेंगे पता चल गया, जब मेरे वेब पेज के ऊपर कभी काउंट करना हो, मैक्स करना हो। एक क्लास काफी है एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। अगर एक वेब पेज बनाना आ गया, 100 वेब पेज बनाना आ गया, और वेब पेज पे क्या हो सकता है, वही इंसर्ट, वही अपडेट, वही डिलीट, वही सर्च, वही काउंट, और क्या हो सकता है यार। यंगार ने क्या कहा, 15 डेज काफी है जॉब लेने के लिए, 15 डेज। बंदा थोड़ा चुस्त हो, दुरुस्त हो, दिमाग का तेज हो। अब ये फंक्शन इस काम के लिए बने, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेंगे, एक ही रिटर्न करेंगे, पर एक मत बोलना, एक एज एग्रीगेशन या कंप्यूट वन, ये भी तो एक ही करेगा। अरे बोलो यार, पहले पेन दो, पहले रिन साबुन दो, गलत बोल रहे हो सर, ठीक है, अरे बोलो, हो गया। तो अब कर्सर को इधर रखेंगे, कोई दे रहा है, ये काम किसको देगा, देख लो, जब ये दे रहा था इस वाले क्लास को दिया, जब ये दे रहा था इस वाले क्लास को दिया, किसको, देख लो। पर ये जब इसको दे रहा था, एक भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, बोल यार, बट ये इसको एक ही देगा, और एक कैसा, कंप्यूट, अच्छा बट बोलना, कंप्यूटेशनल स्टेट, कंप्यूटेशनल स्टेट। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ, ये इसके पास 5 रिकॉर्ड भी आ सकते हैं, अभी 2 रिकॉर्ड आएंगे, 2 रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड एक रीड, दूसरा रिकॉर्ड का मतलब नेक्स्ट रीड। अब यहां तुम क्या निकाल दिया, जैसे मालूम मैंने यहां पे बोले दोनों को जोड़ो, कितने हो गए, तो टोटल रिकॉर्ड हो गया, TR हो गया 2 इक्वल टू, सब निकालिए एक्सेल के शीट से, तो 2 रिकॉर्ड हो गए। अरे बोलो, उस केस में ये फंक्शन जो है इसको रिटर्न करेगा, बोलो क्या, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट में तुम कुछ भी होल्ड कर सकते हो। अब बात सोचने वाली ये है कि इस क्लास इस फंक्शन ने ऑब्जेक्ट रिटर्न क्यों करें। तो हो सकता है तुम्हारा आउटपुट मैक्स हो, 5 हो, मीन 1 हो, अब सम निकालने बैठे हो, सम प्राइस का 10.5 हो, जो आपका आउटपुट फिक्स ना हो, इंट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, तब बॉक्सिंग करो। क्या करो, बोलो बॉक्सिंग। अब दिमाग लो, दिमाग लगा लो, ये अगर फंक्शन अंकल अगर इंटीजर रिटर्न करता, मालूम सम निकालते प्राइस का, जिसकी वैल्यू 10.5 है, एक का प्राइस 10.5 रुपया है, एक का 12 रुपया है, सम भाई क्या होगा, 22.5 रुपया होगा। तो फ्लोट में होगा, मालूम सम निकालना है 10 का और 12 का, किस में, इंटीजर में होगा। तो क्या है, कभी इंट है कभी फ्लोट बोलते हो, क्या चक्कर है आपका। अगर आपकी आउटपुट फिक्स नहीं हो तो उसको बॉक्स किस में करो, ऑब्जेक्ट।
अगर आपकी फिक्स्ड आउटपुट नहीं हो, किस पे बॉक्स करो? ऑब्जेक्ट. When the nature of the data is non-deterministic, when the nature of the data is what? पता नहीं क्या लेके आऊंगा, दाल चावल नहीं लो, क्या ले लो यार, जो लेना ले लो, सब मेरा दो. When the nature of the data is what? मेरा पता नहीं क्या मैं तुमसे मांगू, इंट मांगू, फ्लोट मांगू, से एक तो बोल दो. नहीं मेरा कोई फिक्स है, तुमसे क्या मांगू? अगर फिक्स है तो इंट यूज करो, अगर फिक्स है तो क्या करो? फ्लोट करो. मगर फिक्स नहीं है तो क्या, कहाँ होल्ड करो? ऑब्जेक्ट में होल्ड. कोई भी डेटा को तुमको अगर होल्ड करना हो तो किसमें होल्ड करो? ऑब्जेक्ट में. ये क्या है बोलो?